ویلکم بیک۔ اور شہرنامے میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے لطیف آباد سے، جہاں پر قائم شاہ بٹھائی گورنمنٹ اسپتال میں انتظامیہ کی جانب سے عوام الناس کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوام کو علاج کی بہتر سہولیات اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے لطیف آباد میں قائم شاہ بٹھائی گورنمنٹ ہسپتال انتظامیہ نے سندھ حکومت کے تعاون سے تزئین و آرائش کے کام کا آغاز کر دیا۔ شاہ بٹھائی گورنمنٹ ہسپتال میں گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی سہولت کے لیے 4 بیڈ پر مشتمل جدید آلات سے آراستہ ڈائلیسس سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جس کا معیار کسی بھی طرح نجی اسپتال کے ڈائلیسس سینٹر سے کم نہیں۔ یہاں پہ اتنی او پی ڈی نہیں تھی، اب یورولوجی کی او پی ڈی بھی بڑھ گئی ہے اور فالو اپ میں بھی پیشنٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ ڈائلیسس پہلے یہاں پہ رننگ میں تھا آج سے 2 سال پہلے، پھر اس کی رینوویشن ہوئی، گورنمنٹ نے نیا سیٹ اپ دیا جس میں یہ سارے تمام مشینیں نئی لگی ہیں، آر او پلانٹ نیا لگا ہے، تمام بیڈز ہر چیز مانیٹر سب چیز مل گئی ہے اور یہ مینٹیننس کرائی ہے، سب کچھ اوکے کیا ہے پورا۔ کی او پی ڈی نیو اسٹارٹ کی ہے ہم نے، ابھی جو ملٹیپل پیشنٹ ہے، ملٹیپل ڈیزیز کے پیشنٹ ہے، ابھی بھی سی پی چائلڈ ہو کر گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ سی وی ہو کر گیا، اس سے پہلے سروائکل اسپونڈلائسس ہو کر گیا، ملٹیپل پیشنٹ ہیں ڈیلی نا۔ اصل میں جو ہے وہ یہ ٹرشری کے ہاسپٹل نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے۔ اصولی طور پر تو یہاں پر جو ہے وہ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، جہاں پر نیورولوجی سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پر ای جی، ای ایم جی اور اچھی جو ہے وہ کوئی لیب ہونی چاہیے، جو کہ میرے خیال میں سندھ کے کسی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں مشکل سے ہی ہے، تو یہاں پر ہو نہیں سکتا۔ ہمارا بیڈ لک یہ ہے کہ مٹائی ہاسپٹل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، لیکن ہمارے ساتھ ترشی کے ہاسپٹل لمس حیدرآباد میں موجود ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہاسپٹل نگلیکٹ ہوتا ہے۔ جبکہ نومولود بچوں کی نگہداشت کے لیے جدید نرسری میں نومولودوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ میٹرو ون نیوز کے سروے ٹیم سے بات کرتے ہوئے علاج کے لیے آنے والے مریضوں کا کہنا تھا، سب کیئر بھی بہت اچھی ہو رہی ہے، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹریٹمنٹ بہت اچھا چل رہا ہے، دوائیاں وغیرہ سب کچھ یہاں سے مل رہی ہیں۔ گورنمنٹ ہسپتال میں سندھ حکومت مزید توجہ دے تو کچھ شک نہیں کہ اس ہسپتال کا شمار ضلع حیدرآباد کے معروف ہسپتالوں میں ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اظہر رضوی، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ اور اینٹی کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر ضلع ٹنڈولیار یار میونسپل کمیٹی سے ٹنڈولیار پریس کلب تک نکالی گئی ریلی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح ڈسٹرکٹ ٹنڈولیار میں بھی اینٹی کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میونسپل کمیٹی ٹنڈولیار سے پریس کلب ٹنڈولیار تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 عبدالحفیظ لغاری، سرکل آفیسر محمد اسلم شیخ نے کی۔ ہوگا تو ہمارے نسلوں کی سلامتی ہے، اس میں ہمارے نسلوں کی بھلائی، ہمارے نسلوں کی ترقی ہے۔ اس میں آج کل جو ہمارے پاس کرپشن کا رجحان ہے، جو کرپشن ہے یہ ایک ناسور ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم تو دل کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے ہم کو حساب دینا ہے۔ ملک کے لیے کرپشن ایک ناسور ہے جس کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ اے ڈی سی 1 عبدالحفیظ لغاری و دیگر نے میڈیا سے بات چیت کی۔ اس موقع پر ضلع بھر سے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین ذوالفقار علی کے ساتھ پہلاج رائے، میٹرو ون نیوز، ٹنڈو الیار۔ پاک پتن میں پولیس سادہ لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ پاک پتن تھانہ صدر پولیس شریف شہریوں کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر بلیک میل کر کے بھاری رقم بٹورنے لگی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری پولیس کے اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے۔ کمشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس رحیم یار خان میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سمیت ضلعی افسران کے اجلاس میں شرکت کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی عوامی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی حکومتی ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ جاری ترقیاتی اسکیموں کا جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کر کے عوام کو سہولیات پہنچائی جائیں گی۔ شہریوں کو درپیش مسائل فوری اور ترجیحی
مختلف بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. شہری اور دیہی ترقی کو یکساں ترجیح دی جائے گی. کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ صحت و صفائی، میونسپل سروسز اور تعلیم کی بہتری اور ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں گے. تعلیم و صحت کے شعبوں میں صوبائی رینکنگ میں بہتری لائی جائے گی. کھیلوں کے میدان آباد اور نئے اسپورٹس زون بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. جاری ترقیاتی منصوبوں اور میگا پروجیکٹس کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا. تمام سیکٹرز میں سست روی کا شکار منصوبوں کی نشاندہی کی جائے گی. ضلع میں خانپور کیڈٹ کالج تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. مرید کے تھانہ صدر کی آبادی راویریان روڈ پر واقع فارمیسی پر 3 مسلح ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی. مرید کے راویریان روڈ پر واقع فارمیسی پر ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی واردات کی اور ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون لے اڑے. فارمیسی مالک کے مطابق ڈکیتی کے دوران فارمیسی عملے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اور شکڑ گڑھ میں میٹرو ون نیوز عوام کے محافظوں کا بڑا اسکینڈل سامنے لے آیا. DSP سرکل رانا ندیم کے مطابق پولیس نے موٹر سائیکل چوری اور عورتوں کے ذریعے بلیک میلنگ میں ملوث ہونے پر تھانہ سٹی کے 5 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا. DSP سرکل رانا ندیم کے مطابق تھانہ سٹی میں تعینات کانسٹیبل عادل خان موٹر سائیکل چور گینگ پکڑا گیا. عادل گینگ مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کرتے تھے. اہلکار اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ چوری کی مختلف وارداتیں کرتا تھا. معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کا سلسلہ نہ رک سکا. فتح پور میں ایک اور ننھے پھول کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا. تھانہ فتح پور کی حدود چک نمبر 244 TDA میں 14 سالہ معصوم بچے ندیم کو ایوب نامی ملزم نے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا. پولیس نے فوری اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بچے کا میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کر لیا. پولیس کے مطابق جنسی درندے ایوب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سناوا شہر کے محلہ ڈوگرا میں صفائی ستھرائی اور سیوریج کا نظام زبو حالی کا شکار ہے. سناوا شہر کے محلہ ڈوگرا میں صفائی ستھرائی اور سیوریج کا نظام زبو حالی کا شکار ہے. سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے اور گندگی کے ڈھیر سے متعدد بیماریاں جنم لے رہی ہیں. مچھروں کی افزائش سے ملیریا اور تعفن پھیل رہا ہے، جس سے اہل محلہ پریشان نظر آتے ہیں. شہرنامے میں شامل کریں گے مزید خبریں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. شہرنامے میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب رخ کریں گے کروڑ لالیسن کا، جہاں پر جنرل بس اسٹینڈ پر مسافروں اور شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے والی ٹنکی میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر لیا اسسٹنٹ کمشنر کروڑ سے ٹنکی کی صفائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے. کروڑ لالیسن کے جنرل بس اسٹینڈ میں صاف پانی فراہم کرنے والی ٹنکی، جو کہ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، ٹنکی میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جراثیم پھیلنے لگے ہیں. واضح رہے کہ ٹنکی کا پانی جنرل بس اسٹینڈ میں موجود ہوٹلوں پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور جنرل بس اسٹینڈ کا عملہ مسافر بھی یہی پانی پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے موذی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ چکا ہے. اور ننکانہ صاحب کی مشہور سوغات من پسند، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے. من پسند اپنی لذت اور منفرد ذائقے کی وجہ سے میٹھا کھانے والے افراد کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے. ننکانہ صاحب کو نہ صرف سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل ہے، بلکہ جب بھی میٹھی سوغات من پسند کا نام آئے تو فوراً ننکانہ صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے. من پسند اپنی لذت اور منفرد ذائقے کی وجہ سے بچوں بڑوں میں یکساں مقبول ہے. ماہر کاریگر من پسند کو خالص دودھ، کھویا، دیسی گھی، خشک میوہ جات ڈال کر تیار کرتے ہیں. من پسند بنانے والے کاریگر سجاد احمد کا کہنا ہے 20 تو 22 سال ہو گئے مینوں کام کردے من پسند تیار کرتے ہیں. اس تو بعد من پسند جڑی ہے کھوئے دی تے دودھ دی
ਤੇ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रहीम स्वीट के मालिक चौधरी शहबाद रहीम का कहना है कि मनपसंद बनाते वक्त इसकी क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाता। हिसाब से इस वक्त मनपसंद हमारा मोस्टली डिमांडेड है, वो चल रहा है। हम उसकी क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी, एंड मटेरियल उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करते हैं। उसमें सब E+ ग्रेड रॉ मटेरियल यूज होता है। उसकी डिमांड ये बढ़ रही है इसकी क्वालिटी की वजह से। मनपसंद अपनी मुनफरद जायके की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है। जब कोई बंदा बाहर से आता है तो स्पेशली वो मनपसंद लेके जाता है, चाहे वो सिख हो चाहे वो बाहर से कोई बंदा आए, और हमें स्पेशली कहा जाता है जी कि आपकी मनपसंद जो है वो काफ़ी मशहूर है और हमें वो चाहिए, हमें डिमांड की जा रही है कि हमें मनपसंद दें। सरदार गोपाल सिंह चावला का कहना है कि हमें फख्र है कि मनपसंद की वजह से ननकाना साहब की एक पहचान है। ननकाना साहब जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी है। गुरु नानक साहब की जाए पैदाइश की वजह से उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी तरह ही हमारे ननकाना साहब की जो सौगात है वो एक मशहूर मिठाई है जिसको मनपसंद कहते हैं। जो हमारे मेहमान बाहर से आते हैं हम उनको ये गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही खुशी से इस गिफ्ट को कबूल करते हैं, और हमें भी फख्र होता है कि हमारे ननकाना साहब की जो मशहूर सौगात है वो मीठी मीठी से मिठाई मनपसंद है। मनपसंद की शोहरत की वजह से ननकाना साहब के शहरी भी फख्र महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। टोंसा शरीफ में पुलिस ने 2 मन मनशियात और बलूचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ASP में रोहिल खान सर्कल टोंसा शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टीम वर्क के नतीजे में पुलिस ने नाकाबंदी करके 2 मन चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO उमर सईद मलिक की हिदायत पर तहसील भर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग के निज़ाम को भी सख्त कर दिया गया है। और एक्सिन वापडा कमालिया मोहम्मद कलीम उल्ला ने बिजली चोरों से 1 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद रकम रिकवर कर ली है। वजारत पानी और बिजली उमर अयूब की हिदायत पर प्रोडक्शन फेस्ट को एक्सिन मोहम्मद कलीम उल्ला ने बिजली चोरों के खिलाफ रवां साल में कार्रवाइयां करते हुए 114 बिजली चोरों को गैर कानूनी कनेक्शन लगाकर बिजली चोरी करने पर भारी जुर्माने किए। 1 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद रिकवरी करके रकम सरकारी खजाने में जमा करवा दी। इस मौके पर मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एक्सिन फेस्ट को मोहम्मद कलीम का कहना था कि कमालिया पीर महल शहर समेत मुल्हिका आबादियों में बिजली चोरों के खिलाफ रवा साल छापा मार कर 1 करोड़ 36 लाख से जायद रकम रिकवरी करके सरकारी खजाने में जमा करवाई है। बिजली चोर कौमी मुजरिम है, ऐसे अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कोट अद्दूहेड तोसा बैराज में 4 से ज्यादा अफराद ने असलहे के जोर पर मछली फार्म पर सोए हुए नौजवान को रस्सियों से बांधकर फार्म से हजारों रुपए की मछली निकाल ली। मुलजिमान जाते हुए जेब से नकदी और मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए। कोट अद्दूहेड तोसा बैराज मछली के फार्म पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने नौजवानों से अरबों रुपए की मछली निकाल ली और जाते हुए नौजवान की जेब से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मुतासरा अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस की गफलत से वारदात बढ़ चुकी हैं। हमारा मुतालबा है कि आला हुक्काम इस बात का नोटिस लें। और चिन्योट में लालिया के इलाके कलरी में जाली पीर का एक और कारनामा सामने आ गया। दम करवाने के लिए आने वाली खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। आपको आगाह करें कि चिन्योट के नवाही गांव कोट कलरी में जाली पीर ने दम करवाने के लिए आने वाली खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। वाकई की इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस ने अब तक जाली पीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कसूर से खबर शामिल करें, जहां पर 50 से जायद वारदातों में मुलव्विस बैनुल अज़लाई गैंग के 4 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार करके कब्जे से शहरियों से छीना गया 24 लाख रुपए का माल मसरूक़ा बरामद कर लिया, जबकि असलहा भी बरामद कर लिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन अली बिन तारिक की सरबराही में DSP सदर अशफाक हुसैन काज़मी ने कार्रवाई करके कसूर में 50 से जायद वारदातों में मुलव्विस बैनुल अज़लाई गैंग के 4 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार करके कब्जे से शहरियों से छीना गया 24 लाख रुपए मालियत का माल मसरूक़ा और असलहा बरामद कर लिया।
और खबर दें आपको शेखुपुरा से, जहां पुलिस ने घरेलू तनाजे पर बूढ़े मां बाप और भाई को आग लगाने वाला संगदिल बेटा गिरफ्तार कर लिया है। शेखुपुरा में पुलिस ने घरेलू तनाजे पर बूढ़े मां बाप और भाई पर आग लगाने वाला संगदिल बेटा गिरफ्तार कर लिया। बदबख्त बेटा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बाद घर के बाहर से ताला लगाकर मौके से फरार हो गया था। मुलजिम की बीवी का सास से रोजाना का झगड़ा रहना मामूल बन चुका था। रोज के झगड़े से तंग आकर मुलजिम ने पेट्रोल छिड़का और भाई और मां बाप को आग लगा दी। आनेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मेंबर पंजाब बार मुंतखब होने पर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक तारिक ने के एजाज में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ अनवर ने इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मेंबर पंजाब बार मुंतखब होने पर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक तारिक नुनारी के एजाज में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ अनवर ने इस्तकबालिया पार्टी का एहतमाम किया। मेंबर पंजाब बार मलिक तारिक नुनारी एडवोकेट और उनके साथ आने वाले सीनियर और जूनियर वकला का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ अनवर, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ताहिर नसीम और चौधरी तनवीर अहमद और सीनियर साफियों ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार और फूलों की पत्तियां निछावर की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के हाल में वेलकम पार्टी में सीनियर साफियों की जानिब से मलिक तारिक नुनारी एडवोकेट को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। जी, आज हमें बुलाया गया था, वेलकम किया गया प्रेस क्लब खानेवाल की तरफ से, और यहाँ आके अपने कलम दोस्त साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई कि ये भी वही मकसद रखते हैं, ये भी वही सोच रखते हैं जो काले कोट की सोच है। ये भी मजलूम के लिए और उन लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं जो काला कोट अपने यूनिफॉर्म में होके अदालतों में कर रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं और थैंक यू डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल। तमाम सीनियर जूनियर साफियों ने मेंबर पंजाब बार मलिक तारिक नुनारी एडवोकेट को मेंबर पंजाब बार मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और मुकर्ररीन ने अपने अपने खिताब में कहा कि अगर मीडिया और बार आपस में मिलकर मजलूम और गरीब लोगों की आगे बढ़कर दाद रसी करें ताकि जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। मेंबर पंजाब बार मलिक तारिक नुनारी एडवोकेट ने अपने खिताब में कहा, पंजाब बार के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल मेरा दूसरा घर है, जहाँ मुझे आकर आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है। कैमरामैन टीम के साथ राव मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। और अब जिक्र करेंगे कहरोड़ पक्का का, जहां बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हैं। बाजारों में बैठे माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल टीमें भी नाकाम दिखाई देने लगी। शहरियों ने चीनी, घी, दालें और दीगर जरूरियाती अशिया की कीमतें कम करने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। कहरोड़ पक्का एक तरफ तो महंगाई ने आवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल कर दिया है, दूसरी जानब अगर बात की जाए बाजार में बैठे माफिया की, तो बाजार में बैठे माफिया ने भी अपनी मर्जी के नर्ख जो है मुकर्रर कर रखे हैं, जिस पर शहरी मजबूरन चीनी 100 रुपये किलो, घी 200 रुपये किलो, इसके अलावा दालें 200 से 300 रुपये किलो खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी तरह अगर बात की जाए दीगर ज़रूरियात अशिया की, तो दीगर ज़रूरियात अशिया भी आवाम की दस्तरस से दूर हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी हुकूमती नर्खों पर ज़रूरियात अशिया की खरीदारी यकीनी बनाने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिस पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटा, चीनी, घी और दीगर ज़रूरियात अशिया की न सिर्फ कीमतें कम की जाएं बल्कि इन पर अमल दरामद भी कराया जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। लियाकतपुर के किन्नू अपने रसीलेपन और जायके की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन काश्तकार मकामी मंडियों में मुनासिब रेट न मिलने पर शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे जाम इरफान अजीज से। जी जाम इरफान अजीज, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर की 22 कॉलोनी में, जहाँ पर किन्नू पक कर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो किन्नू है लियाकतपुर का बहुत मशहूर किन्नू है, ये पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। जी, हमारे साथ कुछ बागान मौजूद हैं, मजीद इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। ये किन्नू की जो फसल है ना, इस पर बड़े अखराजात आते हैं। इसमें खाद डाली जाती है, इसको स्प्रे की जाती है, इसको गोडी की जाती है, मगर मुनासिब रेट नहीं मिलता। हमारी हुकूमती नुमाइंदों से अपील है कि हमें तेल, खाद और इसकी मद में जो है ना सब्सिडी दी जाए, ताकि हमारे जो अखराजात कम हों और हमें ये जो मुनासिब रेट है वो भी मिलना चाहिए।
जी बागान का कहना है कि जो किन्नू का रेट है तकरीबन 4 साल से 50 रुपए 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जिससे हमारे जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो सकते। जी लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे जाम इरफान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करेंगे आरिफ वाला की, जहां म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान की मुबैना गफलत के बाइस शहर भर आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। आपको आगाह करें कि म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बाइस शहर भर में आवारा कुत्तों की दहशत उरूज पर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। आवारा कुत्ते दिन भर राहगीरों और बच्चों को काटते रहते हैं। सालाना स्काउट्स कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्काउट्स की जिम्मेदारियों पर लेक्चर्स भी दिए गए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़रिए तमाम मुकामी स्कूल में मुनक्दा सालाना फायर नाइट स्काउट्स कैंप के मेहमान खसूसी चीफ कमिश्नर बॉयज स्काउट एसोसिएशन सरफराज कमर डाहा थे। इस मौका पर सजाद मसूद चिश्ती, जाहिद डार, डॉक्टर जमील, सैयद इतरत नकवी, मुख्तार हमजा भट्टी, एयू आफ्ताब सादिक चीमा, रिजवान हनीफ चड्डा, नईम हावर, मियाँ शहजाद अहमद, मियाँ सानफ गखड़ दीगर ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने शुरका से खिताब में कहा कि अपनी ज़ात और किरदार की तमीर का नाम स्काउटिंग है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में स्काउट्स अपने कौमी इदारों के शाना बशाना इंसानियत की खिदमत का फरीजा बिला मुआवजा सार अंजाम देते हैं। बगैर किसी लालच और बगैर तफरीक के इंसानी खिदमत कार सवाब है। इस मौका पर स्काउट्स ने भरपूर फन का मुजाहरा करते हुए हाजरीन से खूब दाद वसूल की। स्काउट्स कैंप के शुरका ने बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खां के मज़ार पर चादर पोशी और दुआए मग़फ़िरत की और तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में मौलाना जफर अली खां की खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कैमरा टीम के साथ इसान लाई भट्टी, मेट्रो वन न्यूज़, वज़ीराबाद। और बड़े सगीर पाको हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस पर रोज़ाना हज़ारों अफराद सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं और रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। आज भी दावत इस्लामी ताजरान के निगरान मोहम्मद नदीम अत्तारी दावत इस्लामी के वफ़द के साथ दरबार शरीफ पर हाज़िरी देने लाहौर से तशरीफ़ लाए, जहाँ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी उनके साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी मोहम्मद अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पर, जहाँ पर दावत इस्लामी के ताजरान के निगरान मोहम्मद नदीम अत्तारी ने जो है हाज़िरी दी है। इनके जो है फरमुदात के हवाले से वो हमें क्या गाइड करेंगे, आइए उनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी भी और हमारी मीडिया टीम जो शोरकोट से तशरीफ़ लाई है, इनकी खुशनसीबी है कि ये ज़माने के अजीम वली कामिल हज़रत सैयदना सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे हम हाजिर हैं। बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम का इस्लाम की तरवीज व इशाअत में बहुत बड़ा किरदार है और इन बुज़ुर्गों ने अपने अखलाक, अपने किरदार और अपनी दरवेशाना सिफ्त से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को बहुत मजबूत किया है। पत्थर दिल लोगों के इनके दर पे हाजिर हैं। मैं मीडिया टीम का भी शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह के करम से अल्लाह हमें इन अजीम हस्तियों के दर पे आना नसीब करे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरसलान। 10 दिसंबर 1971 को अर्ज़ वतन पर जान निछावर करके तज़य्युन गुलशन में अपना हिस्सा डालकर निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले पाक फौज के पहले सिपाही मोहम्मद हुसैन शहीद की आज 49वीं बरसी है। शहीद की जाए शहादत शकरगढ़ के सरहदी गांव हरड़ खुर्द में वाक़ है, जहां पर पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते नौजवानों ने फूलों के गुलदस्ते और फूलों की पत्तियां निछावर की।
सवार महमूद हुसैन निशान हैदर ताल्लुक 7 बलोच रेजिमेंट से शक्करगढ़ के मुहाज पर दुश्मन के 16 टैंकों के परखच्चे उड़ाने के बाद जामे शहादत नोश किया। मुजाहरड़ खुर्द में कौमी हीरो की जाए शहादत पर पाक आर्मी की जानिब से खूबसूरत यादगार की तामीर। आज़ादी के कदरदान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी और जुर्रात को सल्यूट करने उनकी जाए शहादत पर हाजिरी देते हैं। दूर दराज से आने वाले आज़ादी के मतवाले जहां अपने शहीदों को दादे शुजात देने के लिए इकट्ठे होते हैं, वहीं दुश्मन को ये पैगाम भी देते हैं कि उनके शहीदों के वारिस इस अर्ज़े पाक के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए सरबकफ। जो पाक फौज के साथ मोहब्बत का जज्बा है और जो मेरा अपने वतन की मिट्टी के साथ जज्बा है, जज्बा मोहब्बत है, वो मजीद बढ़ गया है और भरपूर होकर उमड़ के बाहर निकल रहा है। सरहदों की सलाम पेश करने आए हैं सवार मोहम्मद हुसैन जंजवा को कि उन्होंने ये हमें पैगाम दिया है कि जब भी दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे। आज हम इधर शहदा को सलाम पेश करने आए हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में जब हमारी कौम को ज़रूरत पड़ेगी हम शहदा की याद को ज़िंदा करते हुए मुल्क का दिफा करेंगे। दुश्मन पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि चाहे हमें अंदरूनी मामलात में ख़तरात हों, चाहे हमें बैरूनी मामलात में ख़तरात हों, वो चाहे कोई भी हमारा मुल्की दुश्मन हो, चाहे भारत हो, हम उन्हें ये खुलेआम पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की कौम इतनी गैरतमंद और गयूर है कि वो हर दफ़ा अपनी जानें देने से दरेक नहीं करेगी, वो अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती भी है। शहरियों ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जाए शहादत पर यादगार की तामीर को सराहा और कहा ये यादगार आइंदा नस्लों के लिए मीनार-ए नूर है। और एसी लोधरा का कहना है कि शहरी कोरोना के हवाले से मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं हसन शाह से। हसन आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा अमैर महमूद साहब के ऑफिस में हूँ। आज अमैर महमूद साहब अपने ऑफिस के लोगों में भी सैनिटाइजर और है ना मास्क तकसीम कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं कोरोना की। इसके हवाले से पूछते हैं अमैर साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हुकूमत पंजाब की जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसी है जिसके तहत हमने मास्क और सैनिटाइज़र जो है लोगों में इसका यूजेज को इनकरेज करना है कि वो लोग मास्क और सैनिटाइज़र को यूज़ करें। उस हवाले से हम ये जो वीक है SOP इम्प्लीमेंटेशन कोविड वीक, उसके हवाले से हमने छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। हमने कुछ शॉप्स में अवेयरनेस रेज़ की है, हमने अंजुमन ताजरान के साथ भी मेन बाज़ार का दौरा किया है, कल हमने गौसिया चौक पे किया। आज हम अपने ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सके। जी, अमैर साहब ने कहा कि ना हम अपने अब स्टाफ को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और इस वबा से बचें। हसनैन शाह, कैमरामैन साजिद कुरैशी के साथ मेट्रो 1 न्यूज़ लोधरा। थाना सिटी के इलाके अजमेरी चौक में मुसल्लह अफराद ने घर जाते हुए पुलिस एहलकारों को लूट लिया। शोरकोट में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मजीद किस शहर में क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना सिटी के इलाका हजवेरी चौक में 5 मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकारों को लूट लिया। ड्यूटी सर अंजाम देकर घर जाते वक्त पुलिस एहलकार नवीद को डाकू ने गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर 17,000 नकदी, मोबाइल फोन और सर्विस कार्ड लूटकर फरार हो गए। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को फरार होते देखा जा सकता है। फिजान मदीना शोरकोट सिटी में दावत इस्लामी के तहत ताजरान में इज्तिमा मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुआ। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात ख्वानी से किया गया। इज्तिमा में साबका MP खालिद गनी, साबका MPA कमर हयात काठिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपलों, प्रोफेसर हजरात, सिटी प्रेस क्लब के सदर यूनुस नोमी समेत सिटी प्रेस क्लब और सिटी बाहू प्रेस क्लब के मेंबरानों कसीर ताजरान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इज्तिमा मिलाद से बयान करते हुए दावत इस्लामी के पूरे मुल्क के ताजरान के निगरान मोहम्मद नदीम अतारी ने कहा कि हमें इज्तिमा मिलाद भी मनाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए नापतोल में कमी, धोखा फरेब से भी बचते हुए कुरान और सुन्नत के तहत जिंदगी गुजारनी चाहिए। IG पंजाब इनाम गनी का चीचावतनी में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत के वाकया का नोटिस। RPO साहिवाल से वाकया की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। IG पंजाब के नोटिस पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस थाना सदर चीचावतनी ने 3 अफराद के कत्ल में शरीक मुल्जिम उस्मान और काकू को गिरफ्तार कर लिया। DPO साहिवाल अमीर तैमूर
बुजदार की बाकी मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। करोड़ लालीसन गाजियाबाद में चोरी की वारदातों में इजाफा। चोर दीदा दिलेरी से दिन दिहाड़े वारदातें करने लगे। नामालूम चोर की दुकान के दराज से 15,000 नकदी चुरा कर फरार होने का वाकया पेश आया है। वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें नामालूम चोर को दुकान के दराज से पैसे चोरी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है। थाना फतेहपुर पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। सनामा रोड फातिमा शुगर मिल के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर गन्ने से बड़ी ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर उलट गया। आस्कर कंपनी का ऑयल टैंकर कस्बा गुजरात से लिया जा रहा था। हादसे की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान की हदायत पर एम्बुलेंस और फायर व्हीकल का जाए हादसा पर बरवक्त रिस्पांस। फौरी तौर पर इलाके को कार्डन ऑफ करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यजमान मंडी तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। यजमान में महंगाई के बाइस सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। मुल्क भर की तरह यजमान में भी महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। गोश्त तो पहले ही गरीब आवाम की पहुंच से दूर है, अब सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि इन्हें सब्ज मंडी से ही सब्जियां महंगी मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारी दुकानदारी भी मुतासर होती है। शहरियों का मजीद कहना था कि गोश्त तो पहले ही आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है, अब सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियां सस्ती की जाएं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी कवल महमूद, मेट्रो न्यूज़ यजमान। और मानावाला से आपको खबर दें कि जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं चौधरी माजिद भट्टी से। जी चौधरी माजिद भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त आप मौजूद हैं मानावाला यूटिलिटी स्टोर पर। हमारे साथ एक मौजूद है कस्टमर। इनका ये शिकायत है कि मैं जब भी चीज़ लेने के लिए आता हूँ तो मुझे साथ कहा जाता है कि 2,000 की शॉपिंग करें, 4,000 की करें। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले भी मैं एक दफ़ा आया था आटा लेने के लिए, तो उस वक्त भी मुझे इन्होंने कहा कि जी आटा अकेला नहीं मिलना, साथ और कोई चीज़ लें। तो जिसके पास हो ही आटे के पैसे, वो दूसरा सामान कहाँ से ख़रीदेगा? मैं बाहर से फिर ख़रीद लूँगा, और इनकी चीज़ें बाहर के रेट के बराबर ही मिल रही हैं। आज मैं घी लेने के लिए आया हूँ तो वो कह रहे हैं जी घी के साथ भी और शॉपिंग करें तो तभी आपको घी मिलेगा। इसलिए एक पेटी घी मैंने मांगी है, तो वो कह रहे हैं जी ये हमने शॉपिंग करें। कुछ दिन पहले यही कस्टमर जब आटा लेने के लिए आया था तो इन्होंने कहा था साथ 2,000 की और शॉपिंग करें। शहरियों का मुतालबा है कि अगर हमने साथ शॉपिंग करनी है तो हमें जो घी और चीनी में, आटे में सब्सिडी हुकूमत रिलीफ दे रही है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि हमें उसके एवज दूसरी चीज़ें जब लेते हैं हमें घर की जो ज़रूरियात है वो चीज़ें चाहिए, ना कि हमें शैम्पू पाउडर चाहिए, जिसकी वजह से जिसके बगैर भी गुजारा होता है। जी बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी आगाह करने का। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद की जानिब से आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने लेक्चर दिया और आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस का जिद्दत की जानिब जो सफ़र है वो जारी है, और यहाँ पर SSO पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हुंदल की ज़ेर हिदायत पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने जंग के मुख्तलिफ हाईवेज़ पर धुंध में हादसा से बचाव और रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। और इस सिलसिले में 18 हज़ारी और त्रीमी हेड रोड पर रोड सेफ्टी और कैंपस का इनेकाद भी किया गया है। इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट फैसलाबाद रिजवान भट्टी ने शहरियों को लेक्चर देते हुए कहा कि धुंध के दौरान हाईवे पर हद निगाह सिफर हो जाती है। धुंध में फोग लाइट्स का इस्तेमाल जरूरी किया करें। धुंध में तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है, इसलिए तेज रफ्तारी से इज्तनाब किया जाए और रफ्तार को कम रखा जाए और हमेशा काफिले की सूरत में सफर किया जाए। हाईवेज पर लगे साइन बोर्ड्स और रोड मार्किंग को मलहूज़े खातिर रखा जाए। शदीद धुंध के बायस गैर जरूरी सफर भी ना किया जाए। अपनी गाड़ियों की फ्रंट और बैक लाइट्स दुरुस्त हालत में रखें और सुस्त रफ्तार गाड़ियों के पीछे लाइट्स या रिफ्लेक्टर्स लाजमी लगाएं। इसके अलावा रेस्क्यू 1124 की हिफाजत के मुतालिक भी आगाह किया गया कि दौरान सफर किसी भी मसला या हादसा की सूरत में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद हासिल की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने शहरियों में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए। जी शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।